Chapter number 14, statistic. Measure of central tendency. There are three parts: mean, median, and mode. Mean symbol is x bar, median is m, and mode is z. Mode is equal to z. ओके, आज हमें सिर्फ मीन का पार्ट देखना है. There are two types of data. One types of ungrouped data, another parts of group data. Group and ungrouped data. Ungrouped data. Ungrouped data. And second part is group data. In ungrouped data, to find the value of mean, x bar is equal to sigma xi divided by n. What is xi? Xi means observation. Xi means observation. Sigma means sum. Xi, what is the meaning of xi? Xi means observation. Sigma means sum. और सिग्मा xi का मीनिंग क्या हुआ? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा xi? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. एंड n इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज टोटल ऑब्जर्वेशन. n is equal to total number of observation. Total number of observation, that is n. Capital N and small n both are same. Okay. Capital N and small n both are same. Total number of observation, otherwise total frequency, sum of frequency. Sigma xi का मीनिंग क्या है? What is the meaning of sigma xi? Sum of all observation, sum of observation. और total frequency means sum of frequency. Denominator में आएगा sum of frequency, total number of observation. Okay, total number sigma xi. ओके, क्लियर? क्लियर? अनग्रुप डेटा के लिए एक फॉर्मूला है, अनदर फॉर्मूला भी है. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई. इफ एक्स आई ऑब्जर्वेशन इज गिवन एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन, observation is given and frequency is given, so first we multiply by frequency and observation. First we find the product of frequency and observation, then after you find the value of sigma fi xi, means sum of sigma fi xi. What is the meaning of sigma fi xi? Sum of product of frequency and observation. Sum of product of frequency and observation and divide by total number of frequency, that is equal to sigma, that is equal to x bar. X bar means mean. Sigma fi xi divided by sigma fi, that is equal to mean of the observation, mean of ungrouped data. ये जो फॉर्मूला है वो ग्रुप और अनग्रुप डेटा दोनों के लिए है. इसमें कभी कभी अनग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी भी आती है. ओके, सपोज वन ऑफ द एग्जांपल, सपोज there are 40 students in a class and 25 mark tests are there, and the number of marks, suppose 10 marks, the number of students is 2. 11 marks, number of students is 3. 12 marks, the number of students is 5. 13 marks, the number of students is 1. 15 marks, number of students are 5. तो जो number of students है that is fi, और जो number of marks है that is called xi. तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? fi और xi की वैल्यू मिलेगी. फिर उसका सम करना और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, दैट इज 40 से डिवाइड करोगे तो हमें एवरेज मार्क्स क्लास के पता चल जाएंगे. क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं. ये अनग्रुप डेटा के लिए है. ओके, fi मीन्स फ्रीक्वेंसी, sigma fi xi means sum of product of
frequency and observation. Frequency and observation. Sigma Fi means total frequency, otherwise sum of frequency. Group data के लिए there are three methods. First method is direct method. First method is direct method. X bar is equal to sigma Fi xi divided by sigma Fi. Direct method, sigma Fi xi divided by sigma Fi. Same to same for ungroup data. Ungroup data में जो भी method है last, it is same to same as group data, direct method. Second method, assume mean method. Assume mean method. अभी सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला याद रखनी है. एज्यूम मीन मेथड, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई. व्हाट इज डी आई? एक्स आई माइनस एज्यूम मीन. एक्स आई मीन्स ऑब्जर्वेशन माइनस एज्यूम मीन. ए मीन्स एज्यूम मीन. एक्स आई मीन्स ऑब्जर्वेशन में से हम एज्यूमिंग को सब्सट्रैक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू डी आई. डी आई की वैल्यू आ जाए, उसके बाद एफ आई और डी आई का प्रोडक्ट करना, फिर उसके बाद जो भी वैल्यू है उसका सम करना. सिग्मा मीन सम. सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन. डी आई मीन्स डेविएशन और डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई. और ए, what is the value of A? A means assume mean. A means assume mean. And third method, step deviation method. Step deviation method. X bar is equal to A plus sigma Fi ui divide sigma Fi into H. H means class interval. H means क्या है? Class interval, class length. और what is the value of ui? ui means xi minus a divided by h. xi minus a divided by h. ये सारे फॉर्मूला अभी लिखनी है, याद रखनी है. एग्जाम्पल में उसका यूज क्या होगा वो ज्यादा समझ में आएगा. अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रखनी है. ओके, क्लियर? ओके, एग्जाम्पल नंबर 1. Marks obtained, that is in number of marks, and find the number of students. Here number of students are given and marks. 10 marks, there is only one number of students. 20 marks, there is one number of students. 36 marks, there are 3 students. First you find the sigma Fi. सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है? इसका एडिशन. सिग्मा Fi, that is sigma Fi, अदरवाइज उसको n भी कह सकते हैं. सिग्मा Fi और n दोनों का मीनिंग सेम है. 2, 5, 9, 12, 14, 22, 23, 24, 26 और 4, 30. There are 30 students in a class. ओके, तो ये xi भी है, fi भी है. अनग्रुप डेटा के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? fi और xi दोनों हो तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा. fi इंटू xi, fi इंटू xi. पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. 10 मल्टीप्लाई 1, 10. 21 जा 36, 3 जा 108, 44 जा 160, 53 जा 150, 56 2 जा 112, 64 जा 240, 74 जा 280, 72 1 जा 72, 80 176, 92 3 जा 276, 95 1 जा 95. अब सभी का एडिशन, दैट इज ए सिग्मा Fi xi. दैट इज ए सिग्मा Fi xi. चलो फाइंड द सम Fi इंटू xi. 1 1
1779. That sum is 1779. Okay. Sum of sigma fi xi, sum of fi into xi, that is 1779. और x बार की फॉर्मूला क्या है? fi xi. यहाँ पे लिख देना फॉर अनग्रुप डेटा. x bar is equal to sigma fi xi divided by sigma fi. Sigma fi xi 1779 divided by 30. 3 5 are 15. 359.3. Therefore, mean marks in a class is 59.3, and that is the mean of the data. Okay. तो एवरेज मार्क्स कितने होंगे क्लास के? The mean marks is 59.3. Therefore, mean mark of a class, that is equal to 59. And that is the final answer. चलो example number 2. Find the mean of all the three methods of group data. Okay. चलो, here the percentage of the female teachers are in the class 15 to 25 and number of states 6, 11, 7, 4, 4, 2 and 1 subsequently. Sigma fi, that is equal to n, that is equal to 35. Sum of all frequency, that is fi. अब ध्यान रखना, that is a class interval, that is a group data. That data is called a group data. अब ग्रुप डेटा है तो हमें तीनों मेथड से मीन फाइंड करना है. फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड, सेकंड एज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड. ओके. तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ xi. xi मींस क्लास मार्क. सबसे पहले हमें xi फाइंड करना पड़ेगा, क्लास मार्क. हाउ टू फाइंड क्लास मार्क? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. दोनों का एडिशन करना, डिवाइड बाय 2 करना. 25 प्लस 15 40. 25 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 40 बाय 2, that is equal to 20. Similarly 35 plus 25 60. 60 by 2, that is equal to 30. इसमें 10 का इंक्रीजिंग होता है. The class interval is 10. क्लास की गैप कितनी है? क्लास साइज कितनी है? 10 है ना. 25 माइनस 15, 35 माइनस 25, 45 माइनस 35. तो इसमें क्लास की साइज की गैप क्या है? 10 है. तो xi में भी क्या होगी? क्लास की गैप 10 की होगी. 45 प्लस 35 80 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 40. तो इसमें भी 10 इंक्रीज होता है. तो 20 फिर 30 40. अब इसकी मिड वैल्यू क्या होगी? 50 60 70 और 80. चेक कर देना लास्ट में 85 प्लस 75 160 बाई 2 xi. xi का कभी भी सम नहीं करना है, याद रखना. xi का कभी भी सम नहीं करना. ओके. अब सबसे पहले क्या, ये हमारे पास fi भी है xi भी है, आ गया. तो हम फर्स्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड. fi और xi चाहिए. fi और xi दोनों है. तो fi और xi का मल्टीप्लीकेशन करेंगे. फर्स्ट मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं मीन. डायरेक्ट मेथड fi इंटू xi. fi 6, xi 20. 6 इंटू 20 120. 11 इंटू 30 330. 7 इंटू 40 280. 4 into 50 200. 4 into 60 240. 70 into 12 2, that is 140. 1 into 80. तो सबसे पहले उसका क्या करना? एडिशन. that is a sigma fi xi. 0 as it is. 16 24
29, 2, 3, 6, 8, 10, 13. ओके, क्लियर, यहां तक आ गया। तो एफ आई एक्स आई आ गया हमारे पास, तो हम डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई करके मीन फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड की प्रोसेस यहां तक फिनिश हो गई। अब सेकंड मेथड क्या है? एज्यूम मीन मेथड। कोई भी एक नंबर को हमें एज्यूम करना पड़ेगा, किस में से? एक्स आई में से। जो मिड वैल्यू है, जो क्लास मार्क है, उसमें से हम एज्यूम करेंगे कोई भी एक नंबर को। मेजोरिटी हम एज्यूम करेंगे सेंट्रल वैल्यू को, जो सबसे बीच में हो। ओके, तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ओके, और ए की वैल्यू क्या कहते हैं? लेट ए इज इक्वल टू 50। हम बीच में कोई भी वैल्यू है उसको एज्यूम करेंगे। ए इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू ए। ओके, चलो, हर ईच ऑब्जर्वेशन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम मीन। सभी को हमें मीन में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। 20 माइनस 50 का क्या आएगा? -30। माइनस में तो माइनस, एक्स आई क्या है? 30 है, माइनस ए की वैल्यू क्या है? 50, -20। 40 माइनस 50, 50 माइनस 50, एक्स आई भी 50, एज्यूम मीन भी 50, दैट इज इक्वल टू 0। 60 माइनस 50, 10, 20, 30। ओके, क्लियर, इतना समझ में आया? एक्स आई मीन्स ईच ऑब्जर्वेशन, सब्सट्रैक्ट करना है किसमें से? एज्यूम मीन में से। ओके, ईच ऑब्जर्वेशन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम मीन। ओके, चलो, अब क्या करना? एफ आई इंटू डी आई, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन। एफ आई कहाँ है? यहाँ, और डी आई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। 6 इंटू -30, -180, -220, 11 इंटू -20, -70, 0, 4 10 जा 40, 22 जा 40, और इसका सम आएगा सिग्मा एफ आई डी आई। जो नेगेटिव नंबर है उसका सम यहां ही कंप्लीट कर दो, तो आंसर क्या आएगा? 470 नेगेटिव, एंड एडिशन 110। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, 470 नेगेटिव एंड 110, दैट इज नेगेटिव 360 आ गया। ओके, क्लियर। चलो, पहले हम एज्यूम डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन से मीन फाइंड कर देते हैं। फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड सिग्मा एफ आई एक्स आई इज डिवाइड बाय 35, 30, the number divisible by 5, 5 2 जा, 5 7 जा, और 5 8 जा। 278 डिवाइड बाय 7, 7 3 जा 21, 6 7 9 जा 63, 5 71। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? एक्स बार इज 39.71 अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो गई। अब सेकंड मेथड क्या है? एज्यूम मीन मेथड। व्हाट इज द फॉर्मूला? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड सिग्मा एफ आई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? बोलो। ए इज इक्वल टू 50। क्वेश्चन में हमने
टेबल में सपोज कर दिया। व्हाट इज सिग्मा एफ आई डी आई? -360 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई दैट इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस माइनस ए की वैल्यू 50 प्लस की साइन सिग्मा एफ आई डी आई वैल्यू हमने फाइंड की -360 डिवाइड सिग्मा एफ आई। ओके, तो 50 माइनस 360 बाई 35 तो क्या आएगा? 72/7 and 72/7 that is equal to 10.29 and that subtraction is 39.71 39.71। देयर आर टू मेथड्स। अभी एक मेथड और देखनी है, पहले ये दो मेथड कंप्लीट कर दो। चलो कंप्लीट इट। अब यहां से हम स्टेप डिवीजन मेथड में जाते आगे। ui is equal to xi माइनस a by h। ui की वैल्यू क्या है? xi माइनस a by h और लास्ट में क्या आएगा टेबल? fi इंटू ui। चलो ui मीन्स xi माइनस a डिवाइड बाय h। xi क्या है? व्हाट इज xi? समझना है 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 50। तो उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं 20 माइनस 50 डिवाइड बाय h। h मीन्स क्लास इंटरवल। 25 माइनस 15 क्या है? क्लास इंटरवल 10 डिवाइड बाय 10 माइनस 30/10। आंसर क्या आएगा? -3 आएगा, -3। इसी तरीके से सभी नंबर का हमें ui फाइंड करना पड़ेगा। चलो अब इस क्लास का ui xi 30 xi यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ माइनस एज्यूम मीन ए 50 डिवाइड बाय 10 30 माइनस 50 माइनस 20 and -20 divided by 10 that is -2। okay, similarly for आगे xi क्या है? 40। तो यहाँ पे 40 माइनस 50 बाई 10 तो -10/10 आंसर क्या आएगा? -1। फिर यहाँ पे तो आंसर 0 ही आएगा। अब आगे जाओगे तो क्या आएगा? यहाँ पे माइनस आया, नीचे आएगा +1 2 और 3 कंटिन्यूसली आएगा। ये 60 माइनस 50 60 माइनस 50 डिवाइड बाय 10 10/10 दैट इज 1। ओके, चलो अब क्या करना है हमें? मल्टीप्लीकेशन fi इंटू ui। fi और ui का मल्टीप्लीकेशन fi इंटू ui 6 3 -18 -22 -7 0 4 4 और 3 4 1 4 2 2 4 3 1 3। चलो नेगेटिव का सम इस साइड ही कर दो। -47 पॉजिटिव 11 सिग्मा fi ui -47 प्लस 11 इट इज -36 आ गया। -36 स्टेप डेविएशन मेथड। What is the formula? X bar is equal to A sigma fi ui divide sigma fi। A is equal to 50 sigma fi ui into h भी है साथ में। sigma fi ui वैल्यू -36 डिवाइड बाय 35 into 10 तो प्लस माइनस माइनस 36 into 10 360 डिवाइड बाय 35 और 360 बाय 35 वही का वही आया। और कोई भी मेथड से हम फाइंड करें, यू फाइंड द मीन ऑफ एनी मेथड्स तो आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा 39.71। और अब याद रखना ये मेन है याद रखने का, सही है।
डायरेक्ट मेथड में कितने टेबल हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे? फर्स्ट और सेकंड टेबल हमारे पास होंगे, तो 1 2 3 4 हम आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं नंबर्स को, टेबल को। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड टेबल ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। डायरेक्ट मेथड से हमें आंसर लाना हो तो इसमें टेबल नंबर ड्रॉ करना है 1 2 3 और 4, बस इतने ही टेबल बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, और 1 और 2 तो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो 3 और 4 हमें कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। और इसमें एज्यूम मीन मेथड दो, 1 2 3 5 और 6, 1 2 3 5 6 बनाने पड़ेंगे। ओके, 4 बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और स्टेप डेविएशन हो 1 2 3 7 8, 1 2 3 7 और 8 ही हमें बनाने पड़ेंगे। ओके, इतना याद रखना है। क्लियर? चलो, इतना कंप्लीट करने के बाद लीव कर सकते हो।